نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 21 سورۃ الروم، آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں یہ بات گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہواؤں کو چلاتے ہیں خوشخبری سنانے کے لیے، اس کے بعد پھر بارش آتی ہے اور اس پانی سے مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ زمین سے اگاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں، ان سب کو دیکھ کر انسان خوشیاں کرتا ہے، اور جب تک یہ نعمت نہیں ہوتی اس وقت تک انسان نا امید ہو کر بیٹھا ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا رخ اپنا دکھایا کہ اگر اللہ کی ذات طوفان بھیج دے، ایک ہے ٹھنڈی ہوائیں چلنا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں، بارش کی نوید اور خوشخبریاں آ رہی ہیں، اور ایک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر ہم طوفان بھیج دیں اور اس طوفان کی وجہ سے آپ کی ساری لگی ہوئی فصل کھیتی وہ زرد پڑ جائے، ساری ختم ہو جائے۔ جس طرح گندم کی کاش کے دنوں میں عموماً آندیاں اور طوفان آتے ہیں اور ساری کی ساری گندم نیچے زمین پر بچھ جاتی ہے۔ اگر تو یہ دانہ بننے کے بعد یہ عمل آتا ہے پھر کچھ بچت ہو جاتی ہے، اور اگر ابھی اس کا پھل کچا تھا تو پھر ساری کی ساری گندم ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا دوسرا رخ، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا، اگر ہم بھیجیں رِيحًا ایک ہوا کو، فَرَأَوْهُ پھر وہ دیکھیں اس کو، مُصْفَرًّا کھیتی کو دیکھیں کہ مُصْفَرًّا وہ زرد پڑ چکی ہے، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ تو لگیں گے اس کے بعد ناشکری کرتے ہوئے، انکار کر دیں گے، ناشکر الفاظ اور کیا کیا زبان پہ آئیں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ریکارڈنگ ہے جو آج سے 1500 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اور ایک مثال ہمارے سامنے رکھی کہ دیکھو جب ہماری نعمتیں آتی ہیں لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے تو ایسے ایسے الفاظ زبان سے نکال دیتے ہیں جو کفر تک پہنچ جاتے ہیں اور ناشکری کلمات زبان سے نکل آتے ہیں۔ یہ صرف کھیتی باڑی کا مسئلہ نہیں، یہ ہر جگہ کا مسئلہ ہے، اور ہر انسان کے ساتھ یہ پیش آنے والے معاملات ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے رحمتیں نعمتیں اس پر آتی ہیں بڑا خوش دکھائی دیتا ہے، اور کبھی آزمائش آ جاتی ہے تو ایسے ایسے زبان سے کلمات کہ اللہ معاف فرمائے کہ بہت سے کلمات اس کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ الفاظ نقل کرنا بھی زبان پر دشوار معلوم ہوتا ہے جو انسان اپنی زبان سے بڑے آرام سے نکال دیتا ہے، جب کبھی غموں کے اندر پریشانیاں پھنستا ہے، بڑے عجیب و غریب زبان پر کلمات، کسی گھر کے اندر فوتگی ہو جائے تو عجیب و غریب الفاظ زبان سے نکلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا رخ جب ہمارا آتا ہے تو لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ اسی وقت ناشکرے بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ جو مکے کے مشرک لوگ ہیں ان کو آپ دعوت و تبلیغ دیتے ہیں،
یہ دیکھنے میں زندہ ہیں لیکن یہ مردہ لوگ ہیں۔ اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو نہ ماننے والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے والا اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا، اس کی مثال مردہ اور زندہ کی ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے والا مسلمان ہے، وہ زندہ ہے، اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا کافر ہے، وہ مردہ ہے۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ روزانہ غم کرتے ہیں کہ میں ان کو سمجھاتا ہوں، ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی، ان کی سمجھ میں کیا خاک آئے گی۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو سنا ہی نہیں سکتے، یہ تو مردے ہیں۔ جس طرح انسان کے جسم سے روح نکل جائے، مردہ لاش پڑی ہو، اس کو کوئی چیز سنانا چاہیں، سمجھانا چاہیں، اس کو کیا سنائی دے گا؟ اسی طرح ان کو کچھ بھی سنائی نہیں دیتا، یہ مردے ہیں۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہ ہی آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو، الدعاء پکار، آپ اپنی پکار، اپنی تبلیغ بہروں کو نہیں سنا سکتے۔ حالانکہ ظاہراً دیکھنے میں وہ بہرے نہیں تھے، لیکن دین کی بات سننے کے حوالے سے بہرے تھے۔ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، ایک تو کانوں سے سنتے نہیں، اور دوسرا نقصان یہ کہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آرام سے نہیں سنتے، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے۔ تو اتنے بڑے گستاخ، ان کو کیا بات سمجھا سکتے ہیں آپ؟ ان کی کوئی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور نہیں ہیں آپ ہدایت دینے والے عمي، اندھوں کو۔ یہ اندھے ہیں، دیکھنے میں ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ اندھے لوگ ہیں، ان کو دین کی کوئی بات بھی نظر بھی نہیں آتی، سنائی بھی نہیں دیتی، نظر بھی نہیں آتی۔ عن ضلالتہم، اپنی گمراہی سے، اپنے بھٹکنے سے اندھے ہو چکے ہیں۔ ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم گمراہ ہو چکے ہیں، ہم بھول چکے ہیں، بھٹک چکے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ خوش نصیب وہ انسان ہے جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے، اس سے نیچے درجہ اس انسان کا ہے جو بھٹک تو گیا لیکن اس کو سمجھ آ گئی کہ میں بھٹک چکا ہوں، میں غلط راستے پر چل چکا ہوں اور میرا سیدھا راستہ نہیں ہے۔ وہ تلاش کرتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، پھر وہ اس راستے پر چل پڑتا ہے۔ یہ انسان بھی خوش نصیب ہے، اور بد نصیب انسان وہ ہے جو چل رہا ہے غلط راستے پہ اور اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے، میں تو سیدھے راستے پہ ہوں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور نہیں ہیں آپ ہدایت دینے والے عمي، اندھوں کو، عن ضلالتہم، ان کے بھٹکنے سے۔ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ، نہیں آپ سنا سکتے إِلَّا مگر مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، ان کو جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر، جو ہماری نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں، آپ صرف ان کو سنا سکتے ہیں۔ فَهُم مُسْلِمُونَ، وہ مسلمان لوگ ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، فرمانبردار ہوتے ہیں، آپ ان کو سنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی کو نہیں سنا سکتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیات نازل فرمائی، کیونکہ آپ ان کو دعوت و تبلیغ دیتے، وہ مانتے نہیں تھے، آپ غمگین ہو جاتے، بہت دل برداشتہ ہو جاتے کہ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، جہنم کے اندر جا رہے ہیں، میں ان کو بچا رہا ہوں، میری بات نہیں سنتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر ہمیں پھر ایک مرتبہ دعوت فکر دی ہے۔ فرمایا اللہ الذی خلقکم، اپنے اللہ کو پہچانو کہ اللہ کون ہے۔ اللہ وہ ذات ہے، خلقکم من ضعف، جس نے پیدا کیا تمہیں کمزوری سے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے کتنا کمزور اور ناتواں ہوتا ہے۔ ثم جعل، پھر کر دیا، من بعد ضعف، اس کمزوری کے بعد، قوتاً، طاقتور۔ ایک وقت تھا انسان کے اوپر یہ کمزور تھا، پھر اس کے اوپر ایک وقت آیا کہ اللہ نے اس کو طاقت عطا فرما دی۔ من بعد قوت، من بعد ضعف قوت، اللہ نے اس کو طاقت دے دی، یہ جوان ہو گیا۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا، پھر کر دیا اللہ نے اس طاقت کے بعد بھی ضعفاً، کمزوری، وشیبتاً، اور سفید بال۔ یہ انسان کی زندگی کے مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ انسان بالکل کمزور ہے،
फिर एक वक़्त आता है इंसान के जिस्म में ताकत है, तवानाई है, बोलता है तो ललकार के रख देता है, हाथ उठाता है तो जिस मर्जी चीज़ को उठा के उधर फेंक देता है। ताकत, जवानी, शबाब है। और फिर उसके बाद, इस ताकत के बाद फिर बुढ़ापा है, और बुढ़ापे की पहली निशानी बाल सफ़ेद। बालों की सफ़ेदी ये निशानी बुढ़ापा आ चुका है। उसके बाद अगली निशानियां, आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के आज़ा जवाब देना शुरू कर देते हैं। आज इस चीज़ ने इतने % काम करना छोड़ दिया, नज़र इतने % कमज़ोर हो चुकी, ऐनक के बगैर नज़र नहीं आता, हड्डियां कमज़ोर पड़ना शुरू हो गई, कानों की समाअत कमज़ोर पड़ना शुरू हो गई। ये कमज़ोरी, ये बुढ़ापा है। इन 3 मराहिल को अल्लाह ताला ने हमारे सामने जिक्र किया। इसके 2 मकसद हैं। एक मकसद ये है, ऐ इंसान तू अकीदे आखरत का इनकार करके बैठ गया कि मुझे कौन दोबारा जिंदा करेगा। वही अल्लाह जिंदा करेगा जिसने तेरी जिंदगी के अंदर ये मुख्तलिफ चीजें तुम्हें दिखाई हैं। तेरे पास ताकत नहीं थी, कमजोर था, अल्लाह ने तुझे ताकत अता फरमाई। चंद दिन की ताकत तेरे पास रही, जवानी रही, फिर जिस अल्लाह ने तुझसे ताकत वापस ले ली, तुझे बुढ़ापा दिया, वही अल्लाह तुम्हें दोबारा जिंदा करके खड़ा करेगा। दूसरा मकसद इस मिसाल के जिक्र करने का यह है कि अल्लाह हमें समझाना चाहते हैं, अपना अव्वल देखो, अपना आगाज देखो तो कमजोर हो, अपना एंड देखो तो कमजोर हो, दरमियान में कुछ वक़्त की जवानी, ताकत, शबाब है, उसमें ललकार के खड़े हो गए, बगावत का ऐलान कर दिया। अल्लाह ने बुलाया तो आवाज पर लब्बैक नहीं कहा, अल्लाह की फरमाबरदारी की बात आई तो नाफरमानी करके खड़े हो गए। इसलिए तो कहा जाता है कि जवानी की इबादत असल इबादत है, जवानी की फरमाबरदारी असल फरमाबरदारी है, वो अल्लाह को बहुत महबूब है। तो अल्लाह हमें समझाना चाहते हैं, ये 4 दिन की ताकत और जवानी को ऊपर भरोसा करके नाफरमानियां करके खड़े हो गए, इस ताकत को गलत इस्तेमाल करके लोगों के ऊपर जुल्म करने लगे, लोगों के माल छीनने लगे। क्या ये हमेशा रहेगी? नहीं नहीं, इसके ऊपर, जवानी के ऊपर भी ज़वाल आएगा। जिस तरह जवानी से पहले ताकत नहीं थी, कमज़ोरी थी, इसी तरह मैं अल्लाह इस बात की कुदरत रखता हूँ, ताकत रखता हूँ कि तुम्हारी इस जवानी को भी ख़त्म करके तुम्हें बुढ़ापा तारी करूँगा। यख़्लुक़ु मा यशाउ, बनाता है जो चाहे, जो चाहे अल्लाह ताला। कमज़ोर है, ताकत अता कर दी, ताकत को फिर कमज़ोरी में बदल दिया। अल्लाह जो चाहे करता है। व हुवल अलीमुल क़दीर, और वह अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, अल क़दीर कुदरत वाला है। व यौम तक़ूमुस साअतु, जिस दिन क़यामत कायम होगी, युक़सिमुल मुजरिमून, मुजरिम लोग कसमें उठाएंगे, कसम उठाएंगे। कसम क्या कहेंगे? कसम उठाकर, मा लबिसू गैर साअ, नहीं ठहरे वो एक घड़ी के अलावा, सिर्फ दुनिया में एक घड़ी जिंदा रहे, 60, 70 साल, 100 साल, उनको यूं लगेगा जिस तरह एक घड़ी, एक सुबह या एक शाम, बस आधा दिन, इससे ज्यादा मुझे दुनिया की जिंदगी नहीं मिली। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये आलम बरज़ख की बात है। बंदे को कब्र में लिटा दिया गया, हालांकि काफिर को कब्र के अंदर लिटाकर सुकून नहीं मिलता, वहां पर उसकी कब्र जहन्नम बन जाती। कब्र में सांप आते हैं, बिच्छू आते हैं, डसते हैं उसको कब्र में। इन तकालीफ और अजाब के बावजूद जब उसको कब्र से उठाया जाएगा, हशर के मैदान में लाया जाएगा, अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, वो उन मनाजिर को, उन हौलनाकियों को देखकर यूं कहेगा, मा लबिसू गैर साअ, एक घड़ी के सिवा कुछ नहीं ठहरा पीछे में। मेरा तो आलम बरज़ख बहुत छोटा सा नजर आया। वो लोग कहते थे क़यामत बहुत दूर है, ये तो अभी आ गई, पता भी नहीं चला इसका।
कज़ालिक कानू युफ़कून, इसी तरह वो उल्टे फिरे जाते हैं। वक़ाल अल्लज़ीन ऊतुल इल्म, क़यामत का मैदान है, मुजरिम लोग कस्में उठा रहे हैं, हमें तो बहुत थोड़ा टाइम मिला दुनिया में। हालांकि कब्र के अंदर जब इंसान को लिटा दिया जाता है तो काफिर बंदा कब्र के अंदर कहता है, ऐ मेरे अल्लाह क़यामत कायम ना हो, क़यामत को कायम ना करना। और मोमिन बंदा कहता है, ऐ अल्लाह क़यामत को कायम कर दे। दोनों की मिसाल ऐसे है जैसे एक बंदे के बारे में फांसी का हुक्म दे दिया जाए कि 1 महीने के बाद इसको फांसी घाट पर ले जाके फांसी दे दी जाए। उसके लिए 1 महीना यूं गुजरेगा जैसे 1 दिन गुजर गया। फर वो कहेगा दिन बड़ी जल्दी गुजर रहे हैं। और एक बंदे को कहा जाए कि 1 महीना तेरी सजा है, कैद है, 1 महीने के बाद तुझे रिहा कर दिया जाएगा। उससे पूछा जाए तो वो कहेगा मेरे तो 1 दिन सालों के बराबर गुजर रहे हैं, टाइम ही नहीं गुजर रहा। इसी तरह क़यामत के मैदान में जब काफिरों को पेश किया जाएगा तो ये उस हौलनाकी को और खौफनाक मनाजिर को सामने रखकर ये कहेंगे हमें तो पीछे कुछ टाइम ही नहीं मिला। वक़ाल अल्लज़ीन ऊतुल इल्म, और कहेंगे वो लोग जो अहले इल्म हैं, वल ईमाना, और अहले ईमान हैं, अल्लाह ने उनको इल्म भी दिया, अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत भी अता फरमाई। लक़द लबिस्तुम फ़ी किताबिल्लाहि, अलबत्ता तहकीक तुम ठहरे हो अल्लाह की किताब के मुताबिक, इला यौमिल बासी, उठने के दिन तक। ये झूठ बोल रहे हो कि हम सिर्फ 1 घड़ी ठहरे हैं कब्र के अंदर, हम 1 घड़ी ठहरे हैं दुनिया के अंदर, झूठ बोल रहे हो। तुम अल्लाह की किताब के मुताबिक क़यामत तक कब्र के अंदर रहे हो और बड़ी लंबी जिंदगी दुनिया में गुजार के आए हो। फ़हाज़ा यौमुल बासी, ये उठने का दिन है जिसका इनकार किया करते थे तुम। वलाकिन्नकुम कुंतुम ला तालमून, लेकिन तुम जानते नहीं थे इसको, इसका इनकार कर जाते थे। जब कोई बात समझाई जाती कि भाई क़यामत आएगी, हम नहीं मानते क़यामत को, भाई दोबारा जिंदा किया जाएगा, हम नहीं मानते दोबारा जिंदा करने को, बात ही नहीं सुनते। कोई सुनेगा बात को तो फिर वो तैयारी करेगा, वो अल्लाह के दरबार में जाने से पहले हिसाब और किताब की तैयारी करेगा। फ़यौमइज़िन, अल्लाह उस दिन का तारुफ करवा रहे हैं कि वो दिन कैसा होगा। फरमाया ला यनफ़उल्लज़ीना ज़लमू मअज़िरतुहुम, नहीं फ़ायदा देगी उन जालिमों को मअज़िरतुहुम, उनकी माजरत करना, माफ़ी मांगना। हम माजरत चाहते हैं, हम माफ़ी चाहते हैं, हम तौबा करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी तक है। जब तक ये सांस चल रहा है, अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब इंसान की तौबा है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, तौबा करने वाला बंदा ऐसे जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। लेकिन क़यामत के दिन की तौबा कोई फ़ायदा नहीं देगी। वला हुम युस्तअतबून, और ना उनसे माफ़ी तलब की जाएगी, उनको तैयार किया जाए कि तुम माफ़ी मांग लो अल्लाह ताला से। मनाना चाहेंगे भी तो मनाया नहीं, इनकी मोहलत नहीं मिलेगी, इनको मौका नहीं दिया जाएगा। वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआन, और अलबत्ता तहकीक हमने बयान किया लिन्नासी, लोगों के वास्ते, फ़ी हाज़ल क़ुरआन, इस क़ुरआन में, मिन कुल्लि मसलिन, हर किस्म की मिसाल। सुबहान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं हर किस्म की मिसालें देकर, दुनिया की मिसालें, कैसी कैसी मिसालें देकर हमने इंसान को इस कुरान में समझाया है। यही सूरतुर रूम को देख लें, अभी 1-2 सबक पीछे अल्लाह ताला ने समझाया कि ये शिरक कितनी बुरी चीज़ है, जिस बंदे को मेरे बराबर के अंदर करते हो। अगर तुम्हारी मलकियत के अंदर कोई फैक्ट्री हो और तुम्हारे ग़ुलाम को तुम्हारे बराबर लाकर कोई खड़ा करे कि इसको भी तुम्हारे बराबर के इख्तियारात हासिल हैं, नफ़ा नुकसान का जो कुछ करना चाहे कर सकता है,
क्या इसको कबूल करने के लिए तैयार हो? नहीं, कभी नहीं तैयार। अल्लाह फरमाते हैं इस कायनात को मैंने बनाया, मैं कैसे तैयार हो सकता हूँ मुझे कि मेरे साथ कोई शरीक कर दो। और इससे पीछे अगर हम जाते हैं, अल्लाह ताला ने मकड़ी की मिसाल दी। जो बंदे शिरक करते हैं उनके आमाल की मिसाल मकड़ी के घर की तरह। ऐसे मुख्तलिफ मिसालें अल्लाह ने दी। वाला इन जिअतहुम, अब मिसालें सारी देने का मकसद इंसान को नसीहत करना है, इंसान को राह रास्त पर लाना है। लेकिन मक्का मुकरमा के मुशरिकीन का मुतालबा एक ही था, हमें फरमाइशी मौजज़ात दिखाए जाएं। जो हम मौजज़ा चाहते हैं, जो हम निशानी नबूवत के लिए चाहते हैं, रिसालत के लिए चाहते हैं, वो हमें निशानी दिखाई जाए। वो निशानी क्या मांगते थे? वो कहते थे कि ये मक्का मुकरमा सारा पहाड़ों का शहर है, यहाँ से पहाड़ सारे उठाइए, अगर आप नबी हैं तो पहाड़ ख़त्म कर दें, और यहाँ पे खेत ही खेत कर दें, बिल्कुल सीधा मैदान कर दें। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से सब्जियाँ उगाएं, यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से बागात लगाएं, नहरें बनाएं। ये था उनका फरमाइशी मौजज़े का मुतालबा। अल्लाह ने क्या जवाब दिया? वला इन जिअतहुम बिआयतिन, अगर तू ले आए उनके पास कोई निशानी, जो ये मांग रहे हैं ऐसी निशानी भी अगर तू इनके पास ले आए, ला यक़ूलन्न अल्लज़ीना कफ़रू, तो अलबत्ता ज़रूर भी ज़रूर कहेंगे वो काफिर लोग, इन अंतुम इल्ला मुब्तिलून, नहीं हो तुम मगर झूठ बनाने वाले हो। फिर भी नहीं मानेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी झूठा, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानने वाले उनको भी झूठा करार देंगे। ये अल्लाह ने पेशीन गोई पहले कर दी कि जो कह रहे हैं कि सब कुछ दिखा भी दिया जाए, ये फिर भी नहीं मानेंगे। क्यों? इसकी वजह क्या है? फरमाया कज़ालिका, इसी तरह यत्बउल्लाहु अला क़ुलूबिल्लज़ीना ला यअलमून, मोहर लगा दी अल्लाह ताला ने उन लोगों के दिलों पर, ला यअलमून, जो इल्म नहीं रखते, जो जाहिल हैं, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, उनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया। अब ये राह रास्त पर नहीं आ सकते। ठप्पा लगाने का क्या मकसद है? क्या मतलब है इसका? अल्लाह ने अपने इल्म के मुताबिक इस बात की गारंटी दे दी कि ये लोग राह रास्त पर नहीं आएंगे, इनकी मौत कुफर पर आएगी, और इसकी अल्लाह ने मोहर दे दी, उनको स्टैंप कर दिया अल्लाह की तरफ से, गोया के साइन कर दिए गए कि ये कुफर पर मरेंगे। ये है कज़ालिका यत्बउल्लाहु, इसी तरह मोहर लगा देता है अल्लाह ताला अला क़ुलूबिल्लज़ीना ला यअलमून, उन लोगों के दिलों पर जो नहीं जानते। और इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म है? फस्बिर, आप सब्र कीजिए, इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, वला यस्तख़िफ़न्नकल्लज़ीना ला युक़िनून, और आपको बेबर्दाश्त ना कर दें, ला यस्तख़िफ़न्नका, आपको बेबर्दाश्त ना कर दें, अल्लज़ीना, वो लोग, ला युक़िनून, जो यकीन नहीं रखते। आप इनकी बातें बर्दाश्त करते रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप गम के अंदर घुलते घुलते कहीं बेबर्दाश्त ना हो जाए। आप कंट्रोल रखें अपने ऊपर और बर्दाश्त करें, कहीं ये आपको बेबर्दाश्त ना कर दें। अल्लज़ीना ला युक़िनून, वो लोग जो यकीन नहीं रखते आखिरत पर। तो अल्लाह ताला ने ये बातें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताईं, और हमें भी ये बात समझा दी कि देखो, आप अगर किसी को कोई बात समझाते हैं दीन की, ज़रूरी नहीं कि वो बंदा मान जाए। आपने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर दीन की बात लोगों तक पहुंचानी है। मनवाना आपके इख्तियार में नहीं, मनवाना अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह ताला जिसको चाहें तौफीक दे दें और वो सीधे रास्ते पर आ जाए, और जिसको चाहें अल्लाह ताला उसको पीछे रख दें। तो ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। तो अल्लाह ताला ने हमारे सबक का आगाज़ और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने एक मिसाल से हमें ये बात समझा दी कि अल्लाह की ज़ात पैदा करती है, और इंसान कमज़ोर होता है जिस वक़्त अल्लाह ताला उसको ताकत अता फरमाते हैं। और ताकत से पहले जब बच्चे की पैदाइश होती है तो अल्लाह ताला उसको जो सबसे पहला हुनर अता फरमाते हैं वो है रोने का। रोने का तरीका अल्लाह उसको बताते हैं कि तूने कोई चीज़ भी लेनी है
तूने घंटी बजानी है रोकर, तुझे भूख लगे तूने रोना है, तुझे प्यास लगे तूने रोना है, तुझे कोई तकलीफ पहुंचे तूने रोना है। अब वो बोल कर कुछ नहीं बता सकता, लेकिन उसके पास घंटी का एक बटन अल्लाह ने उसको दे दिया और उसको एक ढंग सिखा दिया, अल्लाह ने उसको एक फन और हुनर दे दिया कि तूने रोना है बस। और दूसरा फन अल्लाह ताला उसी वक्त बच्चे को अता फरमाते हैं कि अपने होंठों के साथ और मसूड़ों को दबाकर दूध किस तरीके से, अपनी ग़िज़ा किस तरीके से हासिल करनी। अल्लाह की ये छोटी छोटी नेमतें हमें जहन के अंदर रख के अल्लाह की ज़ात को पहचानना चाहिए कि कहाँ से अल्लाह ने हमारे ऊपर इनामात शुरू किए और कब से कितने साल हो गए अल्लाह की नेमतें बारिश की तरह हमारे ऊपर बरस रही हैं, और हम कब होंगे कि अल्लाह की फरमाबरदारी इख्तियार करके उसके नेक बंदों की सफ़ों में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।